Back to SK1 and we're back again with the analysis of another question that I picked up here, and this is question number 17 from photoelectric effect and wave particle duality. तो यहाँ पे जो question है here you can see it is something like this. Find the maximum magnitude of the linear momentum of a photoelectron emitted when light of wavelength 400 nanometer falls on a metal having work function 2.5 electron volts. Again, the question or the solution doesn't matter too much to us. It is the analysis that actually matters. And यहाँ पे इस question, first thing, photoelectric effect is actually taking place right here. What is photoelectric effect? Again, it's like you shine some light on a metal surface और उस light के जो particles होते हैं, photons होते हैं, उसकी energy लेके ये जो हमारा electrons, free electrons होते हैं इस metal surface में, वो लाइट की पार्टिकल्स फोटॉन्स की एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं एंड दे ब्रेक फ्री फ्रॉम देयर सरफेस, वो सरफेस से निकल जाते हैं. सिर्फ सरफेस से सिर्फ निकलने में जो उनको एनर्जी चाहिए होती है इसे वर्क फंक्शन कहा जाता है. तो ऑफ कोर्स हमें पता है दैट अगर उन्हें सरफेस से कुछ काइनेटिक एनर्जी के साथ निकलना है, कुछ स्पीड के साथ निकलना है, तो सिंस टोटल एनर्जी वो एब्जॉर्ब करे वो तो 1 फोटोन की होगी. Let's say 1 electron is taking energy of 1 photon. So the total energy it absorbs will be that of 1 photon. तब निकलने में इसे वर्क फंक्शन के जितना इक्वल एनर्जी लगेगा प्लस अगर इसे काइनेटिक एनर्जी के चाहिए, सो यू नो दैट दिस टोटल एनर्जी शुड बी इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी प्लस द वेव फंक्शन, राइट? सॉरी, दिस इज वर्क फंक्शन नॉट द वेव फंक्शन. नाउ लेकिन यहाँ पे हमसे पूछा क्या इज द मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर मोमेंटम of the photoelectron emitted. So it's something like this. I have a metal surface and I shine some light on this. तो यहाँ पे मैंने लाइट को शाइन किया, यहाँ पे पूरे लाइट पार्टिकल्स इस पे आ रहे हैं and they shine on this. and यहाँ पे इस पूरे surface में you know there are free electrons all at this surface. and अगर मैंने assume किया कि एक मेरा फोटोन आता है and ये एक इलेक्ट्रॉन को स्ट्राइक करता है. Now what happens is that this electron absorbs the energy of this photon and when it takes in the energy absorb कर लेते हैं इस photon की energy को when it is a free electron. Now this thing can really be confusing क्योंकि हमेशा नहीं होता है. Actually में it is not the case कि हमेशा होता है कि photon हमेशा इसकी energy को absorb कर लेगा. and even when I say photon, this electron absorbs the energy of photon, so this can certainly lead to many contradictions if you don't understand the statement clearly. तो exactly कैसे इस electron and photon का interaction होता है maybe bring up in another video. अभी के लिए हम लोग बस इतना ही समझते हैं कि एक particle of light के पास जितनी energy होती है, how much energy? Well, certainly the rule was given to us by Planck and the energy that one photon of light will have that will be equal to the original Planck's constant times the frequency of light used, right? अगर n ऐसे particles हैं, n ऐसे photons हैं, so it is n h times f. But again energy of one photon is h times f. तो जब एक photon आता है and इस electron को strike करता है, and let's just say for now कि electron इस energy को absorb कर लेता है, so electron के पास अब कितनी energy हो गई? The electron gets an energy equal to h times f. इतनी एनर्जी में इलेक्ट्रॉन को दो काम करना है. एक तो यहां से इस सरफेस से निकलना भी है, दूसरी चीज है काइनेटिक एनर्जी के साथ निकलना, मतलब निकलना है लेकिन अगर ये निकला एंड यहाँ पे आके रेस्ट पे आ गया तो हमें सर्टेनली पता है इट विल फॉल बैक मे बी अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी. इफ नो तब यहाँ पे सर्टेनली ज्यादा दूर तक नहीं जा पाएगा. इफ इट जस्ट barely escapes by the equal to energy equal to the work function right here, तब ये वापस अट्रैक्ट हो जाएगा इन दी मेटल सर्फेस. तो इसे निकलना है कुछ काइनेटिक एनर्जी के साथ निकलना है. तो जब ये यहाँ से निकलता है, मान लो एक काइनेटिक एनर्जी k के साथ निकलता है, सो वी नो कि इसके पास जो टोटल एनर्जी इसने एब्जॉर्ब किया दैट इज h टाइम्स f. किसके इक्वल होना चाहिए? जितनी काइनेटिक एनर्जी के साथ निकला है प्लस निकलने में जितनी एनर्जी लगी इक्वल टू द वर्क फंक्शन अगेन. सो दैट इज द वर्क फंक्शन. तो हमें पता है कि यहां से काइनेटिक एनर्जी के लिए सॉल्व कर लेते हैं, दैट इज hf माइनस
द वर्क फंक्शन, द रियली इजी थिंग टू डू, यहाँ पे इंस्टेड हमें वेवलेंथ ऑफ लाइट बताई गई है. यू नो दैट अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेवलेंथ ऑफ light are related. In fact, for any kind of wave that you have इस formula से related है. So you basically have frequency क्या हो गया, hc over lambda. ये this is c over lambda हो गया, ये hf hc over lambda. अब वर्क फंक्शन हमें बताया गया है 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स. नाउ द स्पीड ऑफ लाइट इज 3 times 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड, राइट. एंड ये लैम्डा कितना है, दिस लैम्डा हैज बीन गिवन टू अस, हमें बताया गया है एज इक्वल टू 400 नैनोमीटर. द क्वेश्चन इज कि हम लोग कौन से यूनिट्स यूज करें इन दिस पर्टिकुलर थिंग, क्योंकि h हमें पता है ये हम लोग जूल सेकेंड में यूजुअली लेते हैं. सो बट द थिंग इज द प्रॉब्लम कम्स इन दिस वेव फंक्शन. ये हमें बताया गया है कितना, 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स. तो यहाँ पे यूनिट्स आ गए इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स की. सो आई विल जस्ट वर्क इन SI यूनिट्स, ऑल्दो इट इज really more suggested to work in electron volts right here, but I don't want to do that kind of conversion, क्योंकि मैं बेसिकली अभी h की वैल्यू इन जूल सेकेंड लेना चाहता हूँ एंड प्रोसीड अकॉर्डिंगली. तो h की वैल्यू बताई हुई है 6.63 times 10 to the power minus 34. So let's just proceed with this. 6.63 times 10 power minus 34 times में हो गया 3 into 10 पे power 8 over the wavelength is 400 nanometers, so 400 times 10 to the power minus 9. माइनस में वर्क फंक्शन इसे मैं कन्वर्ट कर देता हूं इन जूल्स. दिस इज 2.5. एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कि एक इलेक्ट्रॉन में भी गेन करता है आफ्टर फॉलिंग थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 volts. So that is 1.6 into 10 power minus 19, right? तो ये साइड जूल्स में है, दिस साइड इज आल्सो देयर इन जूल्स. इस यहाँ पे अब बात आती है सिर्फ कंप्यूटेशन की. सो टू कंप्यूट दिस आई विल यूज कैलकुलेटर राइट हियर. अब ये क्या हो गया, दिस इज 6.63 times 10 to the power minus 34 times 3 times 10 to the power 8, and अब this is divided as a whole by 400 times 10 to the power minus 400 times 10 to the power minus 9. Right now this term is subtracted from here. This is 2.5 times 1.6 times 10 to the power minus 19, and this comes out to be equal to 9.725 times 10 to the power minus 20 joules, right? तो इतनी जूल की हमारी एनर्जी, एंड इट इज इवन बेटर टू यूज हियर जूल्स इंस्टेड ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स. व्हाई? क्योंकि हमसे लीनियर मोमेंटम पूछा गया है. And now the problem can proceed in two different ways, relativistically and non-relativistically. Even though in general H.C. Verma sir wants the answer non-relativistically, we can also try on checking. तो पहली चीज अगर देखा जाए कि इलेक्ट्रॉन के पास इतनी काइनेटिक एनर्जी है, अगर ये जो इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी है, इट इज बेसिकली ऑफ नो कंपैरिजन टू, दैट इज वेरी मच स्मॉलर देन द इलेक्ट्रॉन्स रेस्ट एनर्जी, तब उस केसेस में हम लोग चीजों को नॉन रिलेटिविस्टिकली ले सकते हैं. अगर यहाँ पे एक सिग्निफिकेंट कंपैरिजन हो सकती है ऑफ द काइनेटिक एनर्जी एंड द रेस्ट एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, तब चीजों को रिलेटिविस्टिकली कंसिडर करना पड़ता है. बट इवन दो वी नो यहाँ पे थिंग्स विल बी नॉन रिलेटिविस्टिक ऑफ कोर्स. हाउ? एक इलेक्ट्रॉन की वेल रेस्ट एनर्जी कितनी होती है? एक इलेक्ट्रॉन की रेस्ट एनर्जी होती है उसका रेस्ट मास, which is as far as I remember 9.11 times 10 to the power minus 31, right? And into me 9 times 10 to the power 16. So 8.199 times 10 to the power minus 14. So actual में what we can consider, if I have put the numbers right, the rest mass of the electron 9.11 times 10 to the power minus 31 kilograms times c squared, that is 9 times 10 to the power 16. Well, this gives us 8.199 times 10 to the power minus 14 and certainly in joules. तो एक चीज जो कि हमें यहाँ पे पता चल रहा है कि काइनेटिक एनर्जी इज बेसिकली ग्रेटर देन द रेस्ट एनर्जी ऑफ दिस पार्टिकल, ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन.
So that's or rather, sorry, I got confused in one thing right here. Negative hai. So this is not so surprising. I really thought it is really surprising for one instance, but no, it is not. Kinetic energy is really lesser than this rest energy of the electron. अगर ये greater होता या फिर इससे equal होता, things would have to be going relativistically. लेकिन इस केस में अगर यहाँ पे सिर्फ orders of magnitude देखा जाए, well, सिर्फ ऑर्डर्स ऑफ मैग्नीट्यूड देखा जाए, सो हाउ मेनी ऑर्डर्स ऑफ मैग्नीट्यूड डज दिस कम अबाउट? इट इज 10 टू द पावर माइनस 14, यहाँ पे 10 पावर माइनस 20. सो यू कैन क्लियरली सी 1 over 10 to the power, you can see right here 6, right? So it is basically that small that you can see right here. तो काफी small है and isn't much significant. So let's proceed things as non-relativistically. In that case, हमारी simple formula होता है that the energy, by which I certainly mean kinetic energy, is equal to linear momentum squared over 2 times mass of the particle. In which case हमें यहाँ से linear momentum पूछा गया. So we have square root of 2mk, right? K we have found to be of this much magnitude or amount, so we can just basically have 9.725 times 10 to the power minus 20 multiplied by 9.11 times 10 power minus 31 times 2 and have the under root for this particular thing, and we find in the end as 4.21 times 10 to the power minus 25 meters per second. And you also have kilograms because it's momentum. So that is basically जो maximum linear momentum photoelectrons का होगा, it will be this much amount. Now here there is the keyword maximum. And maximum क्यों? क्योंकि हम लोगों ने कंसिडर किया है कि एक फोटोन जब एक इलेक्ट्रॉन को हिट करते हैं, इस इलेक्ट्रॉन ने उस फोटोन की पूरी एनर्जी एब्जॉर्ब कर लिया, बट एज इज ऑफन द केस ये पूरी एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं होती है. इट इज सर्टेनली अ मिसकंसेप्शन कि किसी भी केस में एक फोटोन ने इलेक्ट्रॉन को हिट किया तो इलेक्ट्रॉन उस फोटोन की पूरी एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेगा. इट्स लाइक नो, दिस इज वेरी मच लाइक अ कॉलिजन प्रोसेस. एंड व्हाई इज इट सो? वेल, क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में पार्टिकल्स, क्वांटा या फिर फोटॉन्स या फिर लाइट को as a stream of particles माना गया है. Since we are considering the particle nature here, when the photon hits the electron or collides with the electron, it's basically collides with the electron, क्योंकि photon भी particle है, electron भी. So when the photon comes across the electron, it hits it, so that's a collision. Now या तो ये पूरी energy of photon absorb कर लेगा, अगर पूरी energy absorb नहीं करता है, so it will be something like this कि maybe यहां से फोटोन आ रहे, इस इलेक्ट्रॉन को हिट किया. वेल, जब ये हिट करता है, सो व्हाट विल बेसिकली हैपन, ये इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जा सकते हैं एंड वेल द फोटोन माइट गो इन दिस डायरेक्शन. लेकिन सिंस ये इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जा रहे, तो फोटोन ने सर्टेनली इसको एनर्जी तो प्रोवाइड किया. वेल, सर्टेनली इट प्रोवाइडेड एनर्जी, एंड हमें पता है कि अगर एनर्जी प्रोवाइड किया, सो अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कहीं फोटोन ने एनर्जी लूज भी किया है. वेल, अगर फोटोन ने एनर्जी लूज किया है, सो वी नो दैट द एनर्जी ऑफ फोटोन इज बेसिकली ऑफ वन फोटोन इज दिस मच. तो अगर एनर्जी फोटोन की कम हुई, इसकी फ्रीक्वेंसी भी कम होगी, मतलब इसका वेवलेंथ इंक्रीज होगा. सो इन द वेरी यू सी यूनिक केस राइट हियर कि एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड करता है एंड इलेक्ट्रॉन डिफरेंट डायरेक्शन में गया, फोटोन डिफरेंट डायरेक्शन में, जो रिजल्टिंग फोटोन, जब फोटोन यहां से अब निकल लेता है आफ्टर द कॉलिजन, ये फोटोन ज्यादा रेड अपीयर करेगा, क्योंकि इफ इट इज विजिबल एट ऑल, क्योंकि इसकी वेवलेंथ वहां से इंक्रीज हो जाती है आफ्टर गिविंग सम ऑफ इट्स एनर्जी टू द पार्टिकल राइट हियर, टू द इलेक्ट्रॉन राइट हियर, राइट. तो अब ये मे बी अगर विजिबल है फिर भी, सो इट विल अपीयर टू बी रेडर एंड रेडर. It might go into the infrared spectrum or may already be in the infrared spectrum or such and such, लेकिन हमेशा इसकी यहाँ से जो वेवलेंथ होगी इंक्रीज होगी. लेकिन एनर्जी तो एक फोटोन की उससे कम हो नहीं सकती है. वी हैव ऑलवेज बीन टोल्ड सो. प्लैंक ने बताया कि फोटॉन्स की एनर्जी डिस्क्रीट यूनिट्स में होती है या फिर लाइट की एनर्जी डिस्क्रीट यूनिट्स में होती है. आइंस्टाइन ने भी वही बताया.
सो हाउ इज इट पॉसिबल कि फोटोन की एनर्जी उससे कम होगी? फोटोन की एनर्जी उससे कम तो हो नहीं सकती. सो हियर देयर इज अगेन अनदर मिसकंसेप्शन राइट हियर. फोटोन की एनर्जी कम हो सकती है, उसी फ्रीक्वेंसी पे फोटोन की एनर्जी कम नहीं हो सकती, बिकॉज इट इज रिलेटेड टू द फ्रीक्वेंसी राइट हियर. तो फोटोन अपनी फ्रीक्वेंसी डिक्रीज कर सकते हैं या फिर फोटोन से आप एनर्जी ले सकते हो, लेकिन उस केस में यहाँ पे उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी एंड वो फोटोन ज्यादा स्ट्रेच हो जाएगा एज अ वेव. इट विल बी मोर स्ट्रेच्ड एज अ वेव, मतलब उसकी वेवलेंथ इंक्रीज होगी. सो फोटोन की एनर्जी सर्टेनली कम हो सकती है. It's just that at that particular value of frequency or wavelength, it cannot happen, and it is still a discrete unit, and it is still light is again still made, the entire energy is made up of packets of energy. तो ये यहाँ पे हमें linear momentum की discussion करनी थी, कर लिया. But as I already told that the main topic is that of the analysis of it, not the exact solution, क्योंकि solution से हमें उतना मतलब नहीं है. We concern ourselves with what we could possibly learn from the problem. And another thing that we could possibly have right here is the direction of momentum, of linear momentum. तो अगर हमें डायरेक्शन इसका पता करना है, वेल इन दैट केस कैसे करेंगे? सो वी सर्टेनली नीड सम एक्स्ट्रा वेरिएबल्स लाइक वेयर द इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, किस डायरेक्शन से फोटोन इसे हिट कर रहा है. वेल फोटोन का मोमेंटम तो सर्टेनली हम लोग पता कर सकते हैं, लेकिन किस डायरेक्शन से हिट कर रहा है, we need that one variable. उसके बाद ही we may be able to find the direction of linear momentum, and with the current information this is all that we could possibly find. But I hope in future somehow more on this particular kind of collision between a photon and electron, which is certainly a particle collision, लेकिन जिससे relativistically I suppose यहाँ पे certainly consider करना पड़ेगा, because photon is a relativistic particle. It moves at relativistic. It moves just like at exactly the speed of light, right? So we certainly have to consider it relativistically. But I'll bring maybe another video on this particular kind of collision. And this was all for today's video of mine. And thanks to you all, viewers.